There is a story of a man who was exploring caves by a seashore. और एक ऐसी कहानी एक व्यक्ति की जो समुद्र के किनारे गुफाओं को देख रहा था। And one of those caves, he found a canvas bag with a bunch of hardened clay balls. और उस गुफाओं में से एक गुफा में एक ऐसा एक पैकेट वहां रखा था जिसमें मिट्टी के बने हुए ऐसे बॉलें थी या गेंद जैसे आकार की चीजें थी। So he thought maybe these clay balls were made by some children who played there before. और उसको लगा कि ये जो बॉल जो बनी है मिट्टियों की, ये शायद बच्चों के द्वारा उन लोगों ने बना दी होंगी कुछ। And this man, he was alone walking on the beach and he had nothing else to do. So what he did, he took the bag with the clay ball and he started walking with it. और क्योंकि इस व्यक्ति के पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो उसने क्या किया, इस बैग को जो इसमें मिट्टी के गेंद जैसी चीजें बनी थी उसको उठाकर वो चलने लगा आगे। And while he was walking on the beach, he started tossing these balls one by one into the ocean. और जब वो समुद्र के उस किनारे चलने लगा तो उसको लगा कि चलो मैं इस गेंद जैसी मिट्टी की चीज को इसको मैं समुद्र में फेंक के मारता हूँ। How many of you like throwing stones into water? कितने लोग पसंद करते हैं ऐसे पानी में पत्थर फेंकना? I remember when I was growing up in Kerala, we had a pond nearby our house. और मुझे याद है जब मैं केरला में बड़ी हो रही थी तो हमारे घर के पास में एक तालाब जैसा चीज थी। And it always fascinated me when I threw stones into the center of the pond, the ripples form. और मुझे बड़ा प्रभावित ये करता था कि जब मैं इस पत्थर को फेंकती थी, जो उसकी पत्थर के फेंकने से जो तरंगे जो बनती थी पानी में, वो मुझे बड़ी पसंद थी। And these small ripples that form in the center, as they move towards the shore, they become big circles. Something interesting to watch. और ये तरंगे जो बीच में बनती थी, ये जाते जाते बड़ी हो जाती थी और एक किनारे छोर तक पहुंच जाती थी। And this man in our story also, he really enjoyed throwing balls into the ocean as far as he could. और इस कहानी में जो ये व्यक्ति है, ये भी बहुत ही इसका आनंद उठा रहा था इस चीज को करने में। He didn't find anything extraordinary about these balls until he dropped one and cracked open on a rock. और ये जो मिट्टी की गेंद थी, ये जो बॉल थी, ये इसमें कुछ उसको खास मजा नहीं आ रहा था जब तक कि उसमें से एक वहां पत्थर के ऊपर गिर के टूट गया। Then he saw something coming out so beautiful, so shiny. It was a precious stone. और उस मिट्टी के उस बॉल में से उसने एक चमकती हुई कुछ चीज देखी। Excited, this man started breaking open each one, the balls that left behind. और इसने एक एक करके उन एक एक बॉल को तोड़ना शुरू कर दिया और उसमें से वो उनके अंदर क्या है वो देखने लगा। Each contained a similar treasure. और हर एक उस बॉलों में एक वैसे समानांतर कुछ चीजें, चमकने वाली कुछ चीज थी, पत्थर था। So he found thousands of dollars worth gems in these few balls, maybe 20 balls left behind with him. और उसको लगभग लाखों रुपए के ऐसे बहुत कीमती पत्थर उसको उसके अंदर से मिले। Then it struck him. I had been on this beach for a long time and I was throwing balls, maybe 50 or 60 balls I have already thrown into the ocean. फिर इसको याद आया कि अरे मैंने तो इतने 50-60 लगभग जो ऐसे बॉलें थी मिट्टी की बनी हुई, मैंने वो बेकार कर दी मैं पानी में फेंक के। So instead of thousands of dollars worth treasure, he could have taken home tens of thousands of dollars which he had thrown into the ocean waves. और उन लाखों जो कीमत की वो जो पत्थर थे, उसमें से कई लाखों की चीजें वो घर भी ले आ सकता था, लेकिन उसको बेकार कर दिया। So like this man who threw away the precious stones not knowing its worth or value, when we look around, we can see people, those who do not know their worth and value, they waste their precious lives sinking in the worldly waters, and at the end, they hit the rock bottom where they become helpless and hopeless. और जिस प्रकार इस व्यक्ति ने कई लाखों के उस कीमती पत्थर को व्यर्थ में बिता दिया, उसी प्रकार हम भी कई आसपास लोगों को देखते हैं जो अपनी जीवन को व्यर्थ बिता देते हैं, और फिर जब ऐसे आशाहीन एक परिस्थिति में आके उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। Let us read a portion from the Bible, 2 Corinthians chapter 4 verse 7. आइए हम परमेश्वर के वचन में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। In whatever language, Hindi or English, let's read it together. Come on, 1, 2, 3. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Today my sermon is titled
as treasure carriers. आज मैंने अपने सरमन को शीर्षक जो दिया है उसका नाम है कि खजाने को साथ लेके चलने वाले। And from this Bible portion that we read this morning, we are going to focus on three main things. और जो हमने इस गद्यांश जो वचन में से पढ़ा है उसमें 3 बातों पे आज हम ध्यान देने वाले हैं। First, what are the clay jars? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मिट्टी के बर्तन है वो क्या है, And what is in these clay jars? उस मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या है, And number 3, why is treasure in these clay jars? और हम तीसरी बात देखेंगे कि क्या खजाना क्यों है उसके अंदर उस मिट्टी के बर्तनों में। So first let us look at the first one, the jars of clay. आइए सबसे पहले हम देखेंगे उन मिट्टी के बर्तनों के बारे में। I'm sure that we all have seen pots made of clay, right? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब ने उन मिट्टी के बर्तनों को देखा है। In India, we use clay pots for cooking, for carrying water, for growing plants, and for storing things. हमारे भारत में मिट्टी के बर्तनों को पानी रखने के लिए या उनमें पौधे उगाने के लिए या उनमें कुछ चीज़ों को रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। And during Bible times also, clay jars were used for all sorts of work, and it was something that was familiar to Apostle Paul and his listeners who are Corinthian church. और बाइबल के समय में भी इन मिट्टी के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए पौलुस भी इसका जिक्र अपने वचन में करता है। And in the Bible times also, they used to use these clay jars for storing grains, liquids, perfumes, and expensive things. और बाइबल के समय में भी इन मिट्टी के बर्तनों को पानी संभाल के रखने के लिए या इत्र को रखने के लिए इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। And rich people, you know, when they have so much of gold or jewelry or precious stone, they used to collect them in the clay jars and they used to bury them, because those days there were no banks for safekeeping. So they used to keep it away from the thieves by storing them in the clay jars and burying them on the ground. और उस समय जो धनी लोग होते थे, इसमें वो धन अपनी संपत्ति जो सोने जवाहरात है उसको इसके अंदर रखते थे, क्योंकि उस समय बैंक तो होता नहीं था, तो वो उस मिट्टी के अंदर गाड़ के इन मटकों को रखते थे। How many of you have heard about the Dead Sea Scrolls? आप में से कितने लोगों ने जो मृतक सागर, जिसको हम डेड सी बोलते हैं, उनकी उन पत्रियों को देखा है या सुना है? Yeah, Dead Sea Scrolls are parts of the Bible written on scrolls, and they were kept hidden in clay jars. और जो मृतक सागर की जो पत्रियां हैं उनको कई समय तक उनको छुपा के अंदर रखा गया था मिट्टी के बर्तनों में। And it's only in the 20th century that few shepherd boys who went into these caves called Qumran caves near the Dead Sea found these jars with these scriptural scrolls in them. और लगभग 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि कुछ चरवाहे जो बच्चे थे वो वहां जाकर कुमरान, जिसको हम केव्स बोलते हैं, गुफाएं बोलते हैं, वहां जाकर वो खेल रहे थे और उस प्रकार से उनको वो पत्रियां मिली। And even today you can find these clay jars with the scriptural rolls in it in the Israel museums. और आज भी आप इजरायली जो म्यूजियम है जहाँ पर पुरानी चीजें रखी जाती हैं, वहां पर आप इन पत्रियों को उन मटकों में या उन मिट्टी के बर्तनों में अभी आज भी देख सकते हैं। And we know archaeologists, they are always digging, you know, especially in sites like Jerusalem, Israel, historical places, to find the history, to get something from the ground. And they found so many pieces of broken pottery from the ground. और जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों को भी ऐसे कई टूटे हुए मटके, मिट्टी के बर्तन उनको मिले जिसमें पत्रियां रखी थी। So it was a common practice in the olden days to keep valuable things in clay jars. इसलिए पुराने समय में ये बहुत ही सामान्य एक प्रथा थी जिसको मिट्टी के बर्तनों में इस प्रकार से चीजें रखी जाती थी। And a clay jar symbolizes the transformation and creation of soil. और जो मिट्टी के बर्तन है, इसका जो अर्थ है वो है परिवर्तन होना या मिट्टी के द्वारा किसी प्रकार की सृष्टि होना, ये दिखाता है। And the word jar, it came from the Hebrew word yatzer, which shows the creative ability of God as a potter. और जो बर्तन जो शब्द है इंग्लिश में जार, वो इब्रानी शब्द यत्सार से आया, जो परमेश्वर के एक सृष्टिकर्ता के रूप में उसकी काबिलियत को या उसकी उस क्षमता को दिखाता है। Let us look at three things jars of clay signify. और आइए हम 3 बातों को देखेंगे जो मिट्टी के बर्तन दर्शाते हैं। The first one is jars of clay are ordinary. सबसे पहली बात, मिट्टी के बर्तन साधारण होते हैं। We know the jars of clay are made from the inexpensive, easily available material, which is clay. और हम जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बड़ी ही एक सस्ती चीजों से, मिट्टी से बनते हैं। It was not a long or hard process to make a clay pot. और ये बहुत ही कोई मुश्किल एक प्रक्रिया नहीं है मिट्टी के बर्तन को बनाना। They are not very expensive, and an ordinary house in the olden days had so many of those clay jars. और ये बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, किसी भी साधारण घर में उस समय में और आज भी इसको ये पाए जाते हैं।
And when we read the Bible, in the beginning, in the book of Genesis, we see a picture painted. और उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम एक बड़ा अच्छा दृश्य देखते हैं जहाँ पर लिखा है आदि में। There we see how God has created the first human being, Adam. और हम देखते हैं कि आदि में लिखा है परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को आदम को बनाया। We see that God has taken the clay out of the ground and he has formed the shape of a human being and he breathed into his nostril so that he became a living being. और वहां लिखा कि परमेश्वर ने उस मिट्टी की ढेर को उठाकर उसमें अपनी श्वास को फूंका और मनुष्य का निर्माण किया। Bible says that we are dust. और बाइबल कहती है कि हम मिट्टी ही हैं। God has taken us out of the soil and we will go back to the soil. और वचन कहता है कि हम मिट्टी में से ही हम निकले हैं और मिट्टी में ही हम वापस जाएंगे। Like clay jars, we are ordinary. और उस मिट्टी के बर्तनों की तरह हम भी साधारण ही हैं। And number two, दूसरी बात, jars of clay are fragile. और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो कमजोर होते हैं। Jars of clay also signify weakness and fragility. और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो कमजोरी को या बहुत ही नाजुकपन को दिखाते हैं। We know that clay jars are useful, but they only have a very limited working life. और हम जानते हैं कि इन मिट्टी के बर्तनों का बड़ा ही उपयोग है, लेकिन इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। Those who have handled a clay pot knows if you drop a clay pot, it can break. Not only break, it can shatter into many pieces, right? और आप में से जिन लोगों ने इस्तेमाल किया आप जानते हैं कि अगर ये मिट्टी के बर्तन आपके हाथ से छूट जाएं तो ये बहुत ही टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। So clay jars, they fail, they break, they crack, and all kinds of things can happen to a clay jar. तो ये मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, ये बिखर जाते हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं। They are functional but not durable. ये बहुत ही उपयोगी होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। And what they contain determines their value. और इसके अंदर लेकिन क्या है वो उसकी कीमत को बताते हैं। How about us human beings? हमारे इंसान के बारे में क्या? A virus can destroy our human body. एक वायरस हमारे इस इंसान के शरीर को खत्म कर सकता है। We have seen that past 2 years during COVID time, how many young people, strong and healthy people have gone from this world in a matter of few days or weeks. कोरोना काल के समय हमने देखा किस प्रकार जो लोग बहुत ही कसरत करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो लोग भी किस प्रकार से कमजोर पड़ गए। Our bodies can be destroyed if we can get hit or get some kind of a shock. हमारा शरीर भी अगर हम किसी से टकरा जाएं या हम भी किसी भी शॉक में आके हम भी बिखर जाते हैं। Anything, anytime can destroy our body and disturb our minds. कुछ भी चीज किसी भी समय हमको परेशान कर सकती है, हमको तबाह कर सकती है। Our bodies and minds are frail, fragile, easily broken and cracked. हमारा मन, हमारा दिमाग बहुत ही कमजोर होता है, हम एकदम से टूट जाते हैं। Number 3, तीसरी बात, jars of clay are made by hand. ये जो मिट्टी के बर्तन है वो हाथों से बनाए जाते हैं। You know, a potter has to sit down and he has to put a lump of clay on the wheel, then he has to turn the wheel. और आप जानते हैं कुम्हार को उस पहिए के पास बैठकर उसमें वो मिट्टी का वो चीज डालकर और उस प्रकार से उस प्रतिक्रिया से वो एक मिट्टी का बर्तन बनाता है। Then he has to shape each jar with his own hand to make it a pottery in his mind. फिर उस कुम्हार को अपने उस दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपने दिमाग में उसका आकार देता है और उसको शेप देता है। And Bible reminds us that we are the clay and he is the potter and he is molding and making and shaping us. और वचन हमको याद दिलाता है कि हम भी उस मिट्टी के समान है और परमेश्वर हमारा कुम्हार है जो हमको लगातार आकार देता रहता है। In the book of Isaiah chapter 64 verse 8 we read this. और यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, We are the clay, you are the potter, and we are all the work of your hands. देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। In the book of Jeremiah chapter 18 we see another story. और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 अध्याय में हम एक और कहानी देखते हैं। Here God is asking the prophet Jeremiah to go down the potter's house. और यहाँ पर यिर्मयाह नबी को परमेश्वर बोल रहा है कि तू उस कुम्हार के घर में जा। Why did he send him? क्यों उसको भेजा परमेश्वर ने? To see how a potter makes a pot. ताकि वो देखे कुम्हार किस प्रकार से एक मिट्टी के बर्तन की रचना करता So है। while Jeremiah was watching this potter, अब जब यिर्मयाह नबी उस कुम्हार को देख रहा है, the jar that he was shaping got marred in his hands. और वो जो जिस बर्तन का निर्माण वो कर रहा है उसके हाथों में वो उस प्रकार से रखा हुआ है। The potter did not throw that clay, वो कुम्हार ने उसको फेंका नहीं उस बर्तन but को, he has reshaped into another vessel. उस मिट्टी को फेंका नहीं, लेकिन उससे उसने दूसरा एक बर्तन बनाया। God sent him there to teach the nation of Israel that God can do this to the nation of Israel. और परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था कि वो समझ सके कि परमेश्वर भी इजराइल उस जाति में इस प्रकार से ही एक निर्माण कर सकता है।
This is what God is doing in the life of each one of us. और इसी प्रकार परमेश्वर भी हम प्रत्येक के जीवन में यही इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। It is not the clay that decides what it should become and what it should look like. ये मिट्टी नहीं है जो बताती है कि हमें क्या बनना है या हम किस प्रकार से दिखेंगे। A lump of clay cannot make itself a masterpiece. वो मिट्टी का वो लोथ वो चीज वो आपको नहीं बना सकती है, वो एक सृष्टि नहीं, आकार नहीं दे सकती है। The potter is the one who kneads, forms and shapes the clay into a vessel. ये कुम्हार ही है जो उस मिट्टी को आकार देता है और एक बर्तन उसको बना देता है। God is the creator and we are created. परमेश्वर सृष्टि करता है और हम उसकी सृष्टि हैं। So we cannot question God and ask him, why did you make me like this? इसलिए हम परमेश्वर से ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपने मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया है। Now tell the person sitting next to you, you are a clay jar. जो व्यक्ति साइड में बैठा है उसको बोले कि आप मिट्टी के बर्तन हैं। You are a clay jar. आप मिट्टी के बर्तन हैं। Amen. Amen. Number 2, treasure. दूसरी बात, खजाना। When you hear the word treasure, what comes to your mind? जब आप इस खजाने शब्द को सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? Something so precious and valuable like lots and lots of gold, jewelry and precious stones, right? आप मुझे याद है शायद आप सोचते होंगे बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आपके दिमाग में शायद आता होगा। But that is not what Apostle Paul is talking about here. लेकिन वो ये बात नहीं है जो यहाँ प्रेरित पौलुस जिस बारे में बात कर रहा है। Let us look at the previous verse, 2 Corinthians 4:7 we read already. We look at the verse 6. हमने दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय का 7 पद पढ़ा था। आइए हम 6 पद को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Yeah, here it is written, for God who said, let light shine out of darkness. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि अंधकार में से ज्योति चमके। Do you remember where did God say, when did God say, let there be light? आपको याद है परमेश्वर ने कहाँ बोला कि ज्योति हो जा? Where? In Genesis chapter 1 verse 3, right? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 3 पद में परमेश्वर ने बोला। So he said then, let there be light to remove darkness from the face of the earth. और परमेश्वर ने इस प्रकार से इसलिए बोला था कि परमेश्वर उस अंधकार को इस पृथ्वी में से हटा दे। And this same God who has brought light into this world he has given his light in our hearts also. और यही परमेश्वर जो संसार में ज्योति को लाया, ये वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में भी उस ज्योति को लाता है। What is his light? उसकी ज्योति क्या है? It is the gospel. वो सुसमाचार है। It is the knowledge that Jesus has come into this world and he died on the cross for our sins and he is our savior. ये वो ज्ञान है कि परमेश्वर इस धरती में आया और वो हमारे लिए अपने जीवन को उसने न्यौछावर कर दिया। In Ephesians chapter 5 verse 8 we read like this. और इफिसियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा है। For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। So what do we have inside of us? तुम्हारे अंदर क्या है? The light of the gospel of Jesus Christ. वो सुसमाचार की ज्योति यीशु के द्वारा मिलती है, वो हमारे Amen. अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। So when we look at each other, what do we see? जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? We only see the outer shell. We only see the clay jar. हम सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, हम वो मिट्टी का बना हुई चीज को देखते हैं। But God has put his gospel light in each one of us. लेकिन परमेश्वर ने वो ज्योति रूपी सुसमाचार हम सब के अंदर दिया है। We need to shine this light. Like this morning we were singing this song, shine your light in the world. So we have to shine this light so that this dark world can see God's light. उसी प्रकार हमको भी चमकना है ताकि परमेश्वर की ज्योति इस अंधकार के समय में, इस अंधकार के स्थान में प्रकट हो। You know, the darkness in the hearts of the people can only be removed when the light of the gospel, Jesus Christ, come into their hearts and lives. क्या आप जानते हैं कि जो अंधकार लोगों के जीवन में है वो तभी मिट सकता है जब हम यीशु की उस ज्योति को उन तक पहुंचाएं। That is why in Isaiah chapter 60 verses 1 and 2, Isaiah calls out, arise, shine, your light has come. इसलिए हम देखते हैं कि यशायाह 60 अध्याय में इस प्रकार से बोलता है कि उठ, प्रकाशमान हो। So Bible says that, you know, when you have a light, you cannot keep it under cover.
इसलिए वचन कहता है कि जब तुम्हारे अंदर ज्योति है तुम उसको नीचे छुपा के नहीं रख सकते हो। Where do you put the light? On a stand, right? आप उस दिए को या ज्योति को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। When we all have that light of Jesus in us, we need to shine for His glory. उसी प्रकार जो ज्योति हमारे अंदर है हमें उसके लिए चमकाना ताकि उसकी महिमा हो। Amen. आमीन। So number one, treasure is the light of the gospel. सबसे पहली बात है कि वो सुसमाचार की ज्योति। And number two, दूसरी बात, treasure is the Holy Spirit. जो वो खजाना है वो पवित्र आत्मा है। Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 13 और 14 पद, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। So it is the Holy Spirit who opened our eyes to see this gospel light, and it is the Holy Spirit who helped us to receive Jesus into our hearts. और ये पवित्र आत्मा ही है जिसने हमारी आंखों को खोला उस सुसमाचार को समझने के लिए और यीशु के उस ज्ञान को समझने के लिए। And Bible says that we are sealed by this Holy Spirit who dwells in us to lead us in this life until we reach that eternal home. और ये पवित्र आत्मा ही है जिसकी मोहर हमारे जीवन में लग जाती है और जो हमें अनंत काल की इस ओर हमको ले जाता है। We all have electricity connection in our houses, right? हम सबके घर में उस बिजली का कनेक्शन है। You know how the connection is given in our houses? It is not coming from the main power station or substation. ये जो बिजली हमारे घर में आती है ये कोई मेन उस स्रोत से नहीं आती है। There they use a step down transformer to bring down the voltage. Otherwise, everything in our house can burn up. इसलिए हमारे घरों के उस इलाकों में एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वारा बिजली को आती है, नहीं तो अब सब कुछ जल सा जाएगा हमारे घर में। So, this electricity with less voltage where our household appliances can handle, the electricity is given to our houses. Just like that, the Holy Spirit, the power of God is such a great power that we cannot handle. But God has given us that power according to the measure that each one of us can handle. और जिस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घरों में बिजली आती है उस प्रकार से हमको पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमको प्रभावित करता है, जो हमको सामर्थ्य से भर देता है। Amen. Hallelujah. And the third one is the treasure makes us valuable. और तीसरी बात है कि ये खजाना हमको कीमती बना देता है। Matthew, Gospel of Matthew chapter 13 verses 44 to 46. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 44 से 46 पद तक, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत का मोल ले लिया। We know that a treasure is always kept hidden. हम जानते हैं कि खजाने को हमेशा छिपा के रखा जाता है। Nobody keeps a treasure in your friend room or on the dining table or where people can easily see it, right? कोई भी इस खजाने को किसी खुले हुए कमरे में जहाँ पर लोग देख रहे हैं वहां कोई नहीं रखता है इस खजाने को। It will be kept in a safe locker or in a secret place where people won't see it. लोग इसको लॉकर में छुपा के रखते हैं, ऐसे जगह में जहाँ लोग नहीं देख रहे हैं वहां उसको रखते हैं खजाने को। Here this man, he saw this treasure in this field and he again hiding it. And what did he do? He went and sold everything he had to buy this field. और हम देखते हैं कि मनुष्य ने उस खजाने को उस खेत में छुपा दिया और जो भी उसके पास था उसको बेचकर उसने इस खेत को खरीद लिया। People of God, each one of us are carrying that treasure. That treasure is hidden in us like that field. परमेश्वर के लोगों, वो खजाना हम भी अपने अंदर लेके चलते हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। Do you think you have any worth and value? आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत है आज? Yeah. If the enemy is telling you that you don't have any worth and value, that is a lie. Don't believe it. अगर दुश्मन आपको बोल रहा है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है जो शैतान आपके बीच में बोल रहा है। God has deposited that great treasure inside of you. परमेश्वर ने वो खजाना आप सब के जीवन में रखा हुआ है। Now tell the person sitting next to you, you are a treasure carrier. हम एक दूसरे को बोलें कि आप खजाना लेने के चलने वाले हैं। Amen. Amen. In Colossians chapter 1 verses 26 and 27 we read like this. It says the mystery that was hidden for ages is revealed to the Lord's people. The glorious riches of this mystery which is Christ in you, the hope of glory. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। In the Old Testament and in the olden ages, people were waiting to see this mystery, to see this glory which was not revealed to them. हम जानते हैं कि पुराने समय में कई परमेश्वर के लोग उस रहस्य की बात को, उस आने वाली चीज को उसकी आस लगा के बैठे थे। Who is this mystery? What is the mystery? और वो रहस्य क्या था? It is the glory revealed through Jesus.
and his birth, which is given to us, revealed to us, the New Testament believers. और ये रहस्य वो महिमा है जो यीशु के द्वारा प्रकट हुई, जो हम नए नए विश्वासियों को मिली है। So when we think of Jesus' birth to this world, he had to choose a clay jar to be born in this world. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उसी प्रकार इस बर्तन की नाई, इस मिट्टी के बर्तन की नाई वो संसार में हमारे लिए आ गया। So when people saw Jesus Christ as a boy, as a Jewish boy, the clay jar, the outside, they did not see the treasure inside of him, which is the divinity. और जब लोगों ने उस यीशु को देखा एक जवान लड़के बच्चे के रूप में, तो लोगों ने उसके बाहरी उस मिट्टी के बर्तन के रूप में उसको देखा, लेकिन उस खजाने को वो नहीं देख पाए जो एक दैव्यता है परमेश्वर की। We know that Jesus, when he was fully divine, he was fully human also. So many people only saw the human part, and that is why many of them did not believe him. Many of them did not listen to his teachings. हम जानते हैं कि यीशु जो पूरे रूप से दैव्य और पूरे रूप से इंसान था, लेकिन लोगों ने उसके सिर्फ उस इंसानी या उस मनुष्य रूप को देखा, उसकी दैव्यता को नहीं देखा। This morning, brothers and sisters, know that God has hidden something in you, a treasure, that is the light of the gospel and the power of the Holy Spirit. आइए परमेश्वर के लिए हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में उस खजाने को रखा है, जो वो सुसमाचार की ज्योति है और जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। But sadly, many believers look down on themselves because there is nothing to see externally or to show externally. कई विश्वासी लोग निराशा में जीते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है बाहरी रूप से। We compare ourselves with other people looking at the external things. हम लोग अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से करते हैं जो लोग बाहरी रूप दिखाते हैं। And also we differentiate people looking at them if they are less important or more important because of their beauty or wealth or education or family background or whatever. और हम लोग अंतर को बनाते हैं कि इसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं, इसके पास ज्यादा काबिलियत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। We don't usually try to focus or find on the treasure that is hidden in people. हम लोग जो खजाना है उस बारे में नहीं सोचते, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। If you are a believer in Christ, your worth and value comes from within. और अगर आप यीशु के अनुयायी हैं या उसके विश्वासी हैं, आपका जो कीमत है वो अंदर से आती है, अंदर रूप से आती है। And it comes from what Christ has deposited inside of you. और ये उससे आती है कि जो यीशु ने आपके अंदर रखा हुआ है। You need to see beyond the external to acknowledge the treasure within. इसलिए उस खजाने को समझने के लिए आपको उस बाहरी रूप से बाहर हटकर आपको सोचना पड़ेगा। Now let us look at the third part. Why is this treasure in clay jars? आइए हम तीसरे हिस्से को देखेंगे कि क्यों इस खजाने को मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। God did not give us this treasure so that we can selfishly hold on to it. We can keep it for ourselves, but we need to distribute it. ये खजाना यीशु ने हमको इसलिए नहीं दिया कि ताकि हम उसको अंदर अपने समा के रखें, लेकिन इसलिए ताकि हम दूसरों तक उसको बांट सकें। Like Apostle Paul, who was always ready to proclaim the gospel, we are assigned to share the spiritual gold and jewels we got inside of us. जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने इस खजाने को अपने तक नहीं रख के दूसरों तक बांटा, उसी प्रकार हमको इस हीरे जवाहरात जो ये सुसमाचार है, इसको हम दूसरों तक पहुंचाना है। Amen. आमीन। So why is this treasure in jars of clay? तो क्यों ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है? Number one, because God uses ordinary people to accomplish extraordinary things. इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। In the book of Acts chapter 4 verse 13, we see Peter and John in front of the authorities when they were questioning them. They were so brave, so bold. हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना की वो बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने भी वो बड़े हियाव के साथ यीशु के लिए हमको खड़े हो रहे थे। And people were so amazed to see the courage of Peter and John because they knew that these people are ordinary fishermen. They are unschooled. They have no education. But where did this boldness come from? और वहां लोग ये देख के आश्चर्यचकित रह गए कि ये साधारण से मछुआरे हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन किस प्रकार से ये हिम्मत अपनी दिखा रहे हैं। You know what made them extraordinary? आपको पता है वो असाधारण रूप से क्यों काम कर रहे थे? It was the power of God within them, the treasure that they held within. ये परमेश्वर के सामर्थ्य उनके अंदर थी, जो खजाना परमेश्वर ने दिया था, ये उसके द्वारा था। Likewise, when we think about Apostle Paul, we see him as somebody who is extraordinary. उसी प्रकार से हम प्रेरित पौलुस को एक बड़ा असाधारण सा एक मनुष्य हम देखते हैं।
We might say that, Paul is so unique. He is so different. I can never be like Paul. आप शायद बोल रहे होंगे कि पौलुस से बड़ा विशेष था, वो तो बड़ा ही एक अद्भुत इंसान था, मैं तो कभी भी वैसा नहीं बन सकता। We know that he has written half of the books of the New Testament. हम जानते हैं नए नियम के आधे से ज्यादा पुस्तकें उसने लिखी हैं। He was so passionate for God. वो परमेश्वर के लिए बड़ा जोशीला था। He was so wise. He was so clever. वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी एक मनुष्य था। So we see him like a superhero. इसलिए हम उसको एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं। But Paul never sees him like we think about him. लेकिन पौलुस अपने आप को एक इस नायक के रूप में नहीं देखता है। That is what Paul says here in 2 Corinthians. Already we read that, he is a clay jar. और यही हम दूसरे कुरिन्थियों में भी देखते हैं कि पौलुस उसी प्रकार एक मिट्टी के बर्तन के समान ही है। So if anything was extraordinary about Paul, it was that he was so convinced how ordinary he was. और जो एक असाधारण बात जो हम पौलुस के अंदर देखते हैं वो यही हो सकती है कि वो ये बात समझ चुका था कि वो कितना साधारण है। He recognized that he was so fragile, but God was so glorious. वो ये समझ चुका था कि वो कितना कमजोर है और परमेश्वर कितना महान है। A treasure in the jars of clay. एक ऐसा खजाना जो मिट्टी के बर्तनों में है। When God calls us, each one of us, to do something for Him, we have so many reasons to tell God that I'm not qualified for that. और कई बार जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए नियुक्त करता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं जो हम परमेश्वर को देते हैं कि मैं नहीं कर सकता इस चीज को। My excuses are like, I tell God, Lord, my dad was not a pastor. I'm not a preacher's daughter. और मेरे जो बहाने कैसे होते हैं, मैं इस प्रकार से बोलती हूँ कि परमेश्वर मेरे तो पिताजी पास्टर नहीं थे, मैं तो कभी भी पास्टर या प्रचार नहीं कर सकती हूँ। Oh, I don't have enough training and I'm not an outgoing person. I'm an introvert. परमेश्वर मैंने तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, मैं तो बड़ी चुप रहने वाली की ऐसी स्त्री हूँ। My communication skill is very limited and my language ability is very poor. परमेश्वर मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरी ये भाषा भी नहीं है। I know that each one of us has our own reasons for why we cannot do something God asks us to do. और हम सबके पास हमारे एक कारण होते हैं या हम लोग ऐसे बहाने लगाते हैं कि हम क्यों परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। But we need to know that God chooses those who are weak and those who have flaws. लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर जो कमजोर हैं और जो बहुत ही इस प्रकार से हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता The है। perfect example we can see from the Bible is Moses. और एक बड़े अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं मूसा का। In Exodus chapter 4 verses 10 to 13. और निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं। 10 to 13. Moses is telling God, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. I am slow of speech and tongue." और 10 से 13 pad में हम देखते हैं कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। So what does God is telling Moses? Who gave human beings their mouths? और यहाँ पर यहोवा इस प्रकार से बोला कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? Who makes them deaf or mute? मनुष्य को गूंगा और बहरा किसने बनाया है? Who gives them sight or makes them blind? या देखने वाला या अंधा? Is it not I, the Lord? क्या ये मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? Now go. अब जा, I will help you to speak and will teach you what to say. मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाऊंगा। But again Moses is saying, फिर से मूसा इस प्रकार से बोलता है, "Pardon your servant, Lord. हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। Please send someone else." तो किसी और को भेज। It was so hard for Moses. We see Moses as a great leader who led the Israelites out of Egypt. और हम देखते हैं मूसा एक बहुत अद्भुत एक अगुवा था जिसने इजरायलियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाला। But he did not believe in himself. He did not believe that he could do that work that God has given to him. लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि वो कार्य कर सकता है जो परमेश्वर उसको बोल रहा था करने के लिए। When ordinary people do ordinary works with courage, extraordinary impacts will be there. आप जानते हैं कि जब साधारण लोग साधारण चीजें करते हैं लेकिन हिम्मत के साथ करते हैं, बड़ी असाधारण चीजें होती हैं। Can you say this with me? क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? When ordinary people do जब साधारण लोग करते हैं ordinary things with courage, साधारण चीजें करते हैं हिम्मत के साथ, they can have extraordinary impact. उसका प्रभाव बहुत असाधारण हो सकता है। Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Amen. Amen. Many times we look for extraordinary people
or people with extraordinary talents to do extraordinary works. हम कई बार सोचते हैं कि बड़े असाधारण लोग हैं, जो लोग बड़े विशेष काम करते हैं वही असाधारण काम कर सकते हैं, But you never know how God can work through your life, when you work in children's ministry or with a youth, or when you share your testimony or share gospel with somebody. लेकिन आप नहीं जानते परमेश्वर किस प्रकार से आपको इस्तेमाल कर सकता है। संडे स्कूल में या आप सड़क में किसी को आप परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं। Do you believe that? आप विश्वास करते हैं? Are you ready क्या आप तैयार to हैं do what God is calling you to do? जो परमेश्वर आपको कह रहा है करने के लिए? Amen. आमीन। Number 2, extraordinary things happen from the place of overflow. जो उमड़ने का स्थान है, जहाँ ये ज्यादा बहने वाला स्थान है, वहां से परमेश्वर अद्भुत कार्य असाधारण काम करता है। In the Bible portion that we read, 2 Corinthians 4:7, we see a word like this: surpassing, all surpassing power or extraordinary power. और वहां पर दूसरे के 4 अध्याय के 7 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो असाधारण या वो सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। Overflow happens when the flow crosses the boundary of the vessel it contains. और जो उमड़ना है वो तभी होता है कि जब बर्तन की सीमाएं पार हो जाती हैं। You might be limited, आप शायद बहुत सीमित होंगे, but the extraordinary power of God in you can overflow through you when you surrender your life for His will. लेकिन परमेश्वर की वो असाधारण सामर्थ आप में से बह निकल सकती है अगर आप अपने आप को समर्पित परमेश्वर के लिए करेंगे तो। Apostle Peter, disciple of Jesus, when he was filled with this power, Holy Spirit power, we read in the Bible that even when Peter was walking, when his shadow fell on the people, sick people got healed. और हम जानते हैं कि प्रेरित पतरस जब वो परमेश्वर की सामर्थ उसमें बह निकली तो वो जब वो चलता था उसकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। Not because of Peter's ability, but the overflow of the power of God he carried within him. ये पतरस की काबिलियत से नहीं था, लेकिन उस पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके शरीर से उमड़ने के द्वारा वो लोग ऐसा होते थे। Many times when God calls us to do something, we find that it is beyond our talents, beyond our ability or capacity. कई बार जब परमेश्वर हमें किसी कार्य को बुलाता है, हम सोचते हैं कि शायद ये मेरी काबिलियत से बाहर है या मेरी योग्यताओं से बाहर है ये काम। And those are the things we cannot accomplish without God. और ये ऐसे कार्य हैं जो हम परमेश्वर के बिना कभी भी इसको हम साकार नहीं कर सकते हैं। For example, if somebody comes to me for healing prayer, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई मेरे पास चंगाई की प्रार्थना के लिए आता है, in no way I can give healing to that person. मैं किसी भी रूप में उसको चंगाई नहीं दे सकती हूँ। Only the extraordinary power inside of me, the power of God that dwells inside through, it has to overflow through me to that person. That is God's work to give healing to that person. लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ्य है जो वो मेरे अंदर से बह निकलती है और इस इंसान को चंगा कर देती है। It is the same when you share your testimony or when you share gospel with somebody else. Their heart changes and they receive Jesus. It is beyond our capacity. उसी प्रकार से जब किसी को गवाही देते हैं या परमेश्वर के बारे में बताते हैं, ये वैसे ही एक परिवर्तन होता है। ये हमारे द्वारा नहीं होता है। It is the overflow of the Spirit of God. ये पवित्र आत्मा का उमड़ना या उसका बह निकलना हमारे से उसके द्वारा होता है। And that is why in the Gospel of John chapter 4 verse 14 it says like this. और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 14 में इस प्रकार से लिखा है, The wells of water springs out of them. कि जल उसमें से बह निकले। Out of who? किस में से बह निकले? Who already drank it. Those who have Jesus inside of them. ये उनके लिए होगा जो उस अनंत जीवन को, उस जल को पी लेते हैं, Who has this treasure inside of them. जिनके अंदर वो खजाना पाया जाता है। So extraordinary things happens when God pushes you out of beyond your limitations. इसलिए असाधारण काम तब होते हैं जब परमेश्वर आपको आगे की ओर लेके चलता है। Miracles happen when God moves through our lives, not because of our ability. और तभी चमत्कार होते हैं जब परमेश्वर हमारे द्वारा इस अद्भुत काम को करता है। ये हमारी योग्यताओं के द्वारा नहीं होता। Amen. आमीन। And number 3, और तीसरी बात, only the ordinary can truly handle the extraordinary power. और ये साधारण लोग ही हैं जो असाधारण काम को कर सकते हैं। When God moves, we know it is God, it is not us. और जब परमेश्वर कार्य करता है तो हम जान लेते हैं कि ये परमेश्वर ही है, ये हम नहीं है जो कार्य कर रहे हैं। So when we try to steal the glory from God, when we try to take, name for ourselves, we lose God's power. इसलिए जब हम उस परमेश्वर की महिमा को छीन लेते हैं या उसको वो महिमा नहीं देते हैं तो परमेश्वर वो सामर्थ हमसे ले लेता है। Bible says God doesn't want to give His glory to anyone. और परमेश्वर अपनी महिमा को ऐसे ही किसी को नहीं दे देता।
Have you seen people God used once very powerfully and they took the honor for themselves and later on they lost that power? आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही परमेश्वर जिनको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को वो अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने नाम के अपने आप को ऊंचा उठाने लगते हैं, तो परमेश्वर वो सामर्थ, वो अभिषेक उनसे ले लेता है। So, like those decorated pots on the display shelf, they look so attractive, they look so good from outside, but inside will be empty. ये उसी प्रकार से वो बर्तन हैं जो बहुत ही आगे से बहुत ही सजे हुए रहते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली रहते हैं। Only a person with humility can truly get God move through them. और ये ऐसे इंसान जो नम्र बन के रहते हैं, परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है। So even when God does extraordinary things and miracles through your life, stay humble and give glory to God. इसलिए जब भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए या आपको महिमा दे, तो आप नम्र बन के अपने जीवन को बताएं। Amen. आमीन। And that is why, when Jesus chose his disciples, he did not go for people with big titles or degrees or people those who are in big position of authority. इसलिए जब परमेश्वर ने अपने पहले 12 चेले चुने, तो परमेश्वर ने कोई डिग्री वाले या बहुत काबिलियत वाले लोग नहीं चुने। Jesus chose normal, ordinary people like you and me. यीशु मसीह ने सिर्फ साधारण लोगों को चुना, जैसे आप और मैं हैं। Many of them were fishermen, tax collectors, and we know that ordinary people, vessels of clay. और वो लोग मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे, साधारण लोग थे, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं। And they were people full of flaws and weaknesses like us. और उसमें ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही कमजोर थे और जिनमें कमियां थी, जैसे हम लोग हैं। In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 9 पद में Paul has written like this. पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है, But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Amen. आमीन। We all are people with flaws, weaknesses and limitations. हम सब यहाँ पर कमियों के साथ और अपनी अकाबिलियत के साथ बैठे हैं। None of us are perfect. हम में से कोई सिद्ध नहीं है। So my dear brothers and sisters, today if you think you are weak, you are limited. God's strength and His grace is sufficient for you. और अगर आप ऐसे कमजोर अगर आप बैठे हैं और आप समझते हैं मैं सीमित हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। Amen. आमीन। So in 2 Corinthians 4:7, you can rewrite this word like this. The meaning is like this. और दूसरा कुरिन्थियों के 4 के 7 का जो अर्थ है, आप फिर से लिख सकते हैं इसको। Number 1, we are like common clay jars that carry this glorious treasure within. और हम वो साधारण से मिट्टी के बर्तन हैं जो अपने अंदर महिमा में खजाने को लेके चलते हैं। So that number 2, extraordinary overflow of power, that is God's power. ताकि वो असाधारण उमड़ना जो परमेश्वर की सामर्थ का है वो हमारे द्वारा हो सके। Number 3, तीसरी बात, will be seen as God's, not ours. हम लोग परमेश्वर के होके दिखेंगे, हम लोग अपने आप के होके नहीं दिखेंगे। Amen. Hallelujah. आमीन। Whose power is it? ये किसकी सामर्थ है? It is God's power. ये परमेश्वर की सामर्थ है, It is not ours. हमारी सामर्थ नहीं है। Look at this picture. आप इस तस्वीर की ओर देखें। This is one of our pot plants. ये हमारा कई गमलों में से एक गमला है। What do you see here? What is special about it? क्या है विशेष इस बारे में? Can you tell me? आप बता सकते हैं? No clay pot, right? The pot is completely broken off, जो गमला है वो पूरी रीति से टूट चुका है, but the plant remains intact. लेकिन जो पौधा है वो अभी भी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। When I was watering these plants, it made me think. जब मैं इसमें पानी डाल रही थी पौधे में, तो उसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। Our clay jars will surely break away one day. हमारे मिट्टी के बर्तन एक दिन जरूर टूट जाएंगे। It doesn't matter how much we build our muscles, go to gym, or eat good food, or take nutrients, supplements, whatever we do, one day we will perish. We are daily dying. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जिम जाते हैं, कितना आप लोग खाना खाते हैं, कितना कसरत करते हैं, हम लोग एक्चुअली धीरे धीरे मरने की ओर बढ़ रहे हैं। We are fast approaching to the end. हम लोग अंत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
But people of God, two things will remain. लेकिन परमेश्वर के लोगों दो बात मिटेंगी नहीं. First, life of Christ in us, life of Christ in each one of us, that is, our spirit will live on for eternity. सबसे पहली बात कि जो मसीह की देह है उसकी आत्मा हमारे अंदर है वो कभी नहीं मिटेगी. And number two, the gospel pearls and jewels we distributed will continue to do its work in the life of those to whom we shared it with. और दूसरी बात जो हीरे जवाहरात रूपी जो हमने सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो कभी मिटेगा नहीं. Amen. आमीन. Would you like to share this treasure with other people? क्या आप इस खजाने को दूसरे तक भी पहुंचाएंगे? Do you want to see your family people, those who are not saved, those who do not know Jesus, to have this treasure inside of them? क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में से जो लोग बचाए नहीं गए, जिन लोगों ने मसीह को नहीं जाना है, वो उस खजाने को प्राप्त करें? Maybe your friends, your neighbors, the co-workers, they are living in darkness. They do not have this treasure inside of them. शायद आपके मित्र, शायद आपके सहकर्मी, शायद आपके साथ में आसपास के परिवार के लोग